and welcome to a cover story interview. I have with me a guest who I've been chasing for a very long time, so I'm very happy to welcome him on the show today. I have with me Manoj Jha. He is the Rajya Sabha MP from the Rashtriya Janata Dal and also national spokesperson for the party. Manoj ji, so good to have you here. We've been trying to get you on the show for so long. Thank It's you so very much. Thank you so very much, Priyaji. In fact, I regret that I couldn't appear earlier. No, I did not mean to put you in a corner, but it's nice of you to say that. But it's a very important time that I've got you. You know, we've just finished with Operation Sindoor. Bihar mein chunav bhi aa rahe hain. The government has made the announcement of the caste census also. But sabse pehle, I want to talk to you about the politics that has followed after the military action with Pakistan. क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन ने जो बहुत अच्छी तरह बिहेव किया था ड्यूरिंग द वॉर, कोई सवाल नहीं करे, अब थोड़ा पॉलिटिकिंग शुरू हो गई है, जिस तरह के एक्सचेंजेस हो रहे हैं गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के बिटवीन, एक दूसरे को देशद्रोही बोल रहे हैं, गद्दार बोल रहे हैं, तो क्या लगता है कि इतने हाई से फिर से बिल्कुल नीचे हो गया पॉलिटिकल डिस्कोर्स? नहीं, आपने एक बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम के बाद और ऑपरेशन सिंदूर हाँ। के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा। इसे था मत लगाइए। डोंट से दिस इन पास्ट टेंस, एंड आई एम emphasizing it. Whatever we have written or spoken is actually a kind of statement that nation comes first. सुनिए, एक चीज महत्वपूर्ण है, देश में राजनीति होनी चाहिए, लेकिन देश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये में और पर का बहुत बड़ा फर्क है जो कई लोग बिसरा देते हैं, और हम भूल जाते हैं कि पहलगाम की जो पीड़ा थी वो महज उन 26 परिवारों की पीड़ा नहीं रही। 140 करोड़ हिंदुस्तानी ने उस दर्द को, उस पीड़ा को अपने अपने दिल में महसूस किया, और इसलिए देश ने एक स्वर में बोला। अगर कोई सवाल भी पूछे तो देश से सवाल नहीं पूछे, स्ट्रैटेजिकली कुछ चीजें सामने रखी कि ये नहीं, ये करना चाहिए था। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आज भी मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। गुडविल मिशन आप पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। संभवतः पहली बार मुझे व्यक्तिगत तौर पे एहसास हुआ, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी मिशंस को लेकर के थोड़ा विद्यार्थी जीवन से पढ़ा है, तो मैं एक बात कहूंगा, वी हैव नो डेarth ऑफ फ्रेंड्स अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन ऐसा क्या हुआ, इस बार कई सारे हमारे दोस्त खुल करके they did not come out and said we stand with you. Yes. That worries me as a citizen of this country. Even if I was not in politics, that would have worried me. That keeps me worried. That keeps me worried for the nation, for its government, and for its opposition also. Because today's opposition could be tomorrow's government. But if the geopolitical setup and the nations across the world have insulated themselves from what is happening, everybody knows that it's a textbook case, open and shut case, the way terrorism has become a kind of spoken and unspoken policy of our neighbor Pakistan. I think in that sense, while this happened, there was a statement from an MP minister. Can any one of us in our senses would agree to that? Number one. Number two, I'm very particular when I say this Pahalgam terror incident had a dual purpose. Number one, to terrorize people. Number two, to polarize India. India did not get terrorized. Number one, India did not get polarized. Probably the neighbor realized कि इस मिट्टी में कुछ खास है साहब। ये जब मिट्टी बनी थी ना, तो ये बहुरंगी मिट्टी थी, और वो एकांगी सोच वाले सरहद पार नहीं समझ सकते। उस संदर्भ में अगर आप देखें, जो कुछ बयानात आ रहे हैं, वो बयानात मैं समझता हूं कि वो चीजें हमारे उस रिजॉल्व को थोड़ा कमजोर करती हैं। सवाल ये नहीं है कि पक्ष में कौन है, विपक्ष में आज कौन है। सवाल ये है कि सरकार से भी एक उम्मीद होती है। जैसे मैं अभी देख रहा था ट्रेन टिकट को लेकर के, माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर सैल्यूट करते हुए। सबसे खूबसूरत तस्वीर होती, प्रिया जी, वो जो हमारी ब्रीफिंग होती थी ना,
ऑपरेशन के दौरान बाय मिस्री साहब, व्योमिका जी एंड सोफिया कुरैशी जी। अगर वो तस्वीर आती जी। ना, पूरा देश सैल्यूट करता, नमन करता। फिर थोड़ा कष्ट होता है, असहज होते हैं हम। बस इतना सा मुझे कहना है। और एक गुडविल मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के गांव गांव में पहुंचने की जरूरत है। दुनिया को हम बताएंगे कि हम धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र वाले देश हैं। हमारे यहाँ सत्ता का हस्तांतरण बहुत स्मूथ होता है। हमारी मिलिट्री प्रोफेशनल है और नॉन पॉलिटिकल है, हम्म। पॉलिटिकली अनएफिलिएटेड है। हमारे पड़ोस की मिलिट्री या तो सरकार में रहती है या सरकार अपने जैसा चाहती है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर मैं समझता हूं कि हमारे पूरे विमर्श को हमेशा रहना चाहिए। ये आपके पॉइंट्स काफी सहज हैं, पर एक पॉइंट है जैसे कि अभी जो विपक्ष कहती है कि हमें ऑल पार्टी मीटिंग करनी चाहिए, हमको सवाल थोड़े जो है वो करने चाहिए। ये सवाल आप ऑल पार्टी, सॉरी, पार्लियामेंट का ऑल सेशन के लिए वेट करिए। आप तो ट्विटर में ये सवाल शुरू कर दिए हैं, जयशंकर को टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो इसको लेके गवर्नमेंट कहती है कि वेट फॉर सम, ये देखिए सब बाहर क्यों आ रहे हैं? इस मामले में प्रिया जी, मैं अपनी फोर्स को, आई बिलीव माई फोर्सेस, I believe the forces have the right to divulge what they wish to divulge at this moment of time, what they don't wish to divulge at this moment of time, what they wish to divulge explicitly at a later date. This is my personal opinion. This is what my political party feels. But there are certain issues. There are certain issues. We are the same nation which had a parliament session when the war was going on with China. What have we become? ये क्या हो गया हमारी? अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संसद है, संसद तो सबसे बड़ी पंचायत है ना। संसद बैठेगी तो क्या होगा? होता है। कोविड में हम बैठे, क्राइसिस पे बात की, आलोचना भी हुए, आलोचना भी काफी हुई, लेकिन चीजें निकल के आई। अब छोटा उदाहरण देता हूं। कोविड के वक्त में मैंने अपने स्पीच में कहा था, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स। क्या राइट। ये मैं सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बोल रहा था? और आज जो गुजरात से चीजें खबर आ रही है, गवर्नमेंट का डेटा आ रहा है जो कह रहा है डेथ्स वेयर अंडर रिपोर्टेड। तो कई दफा ये चीज सोचना होगा। और एक चीज प्रिया जी, आई हैव रिटन अबाउट इट, आई रिपीट इट 100 times। गवर्नमेंट इज नॉट द नेशन। गवर्नमेंट इज नॉट द नेशन। राष्ट्र निरंतरता की चीज है। सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, फिर बनती हैं। आज आपकी बनती है, कल किसी और की बनती है। लेकिन अगर मैं देश से मोहब्बत करता हूं, इफ आई एम इन लव विथ माई नेशन, I shall certainly ask question to the government. We have done it with the Congress government. We have done it with the third front governments. We'll do it again. So let there be no mistake that the government and the nation are one and the same thing. Do you think that this time, maybe because there was a little ceasefire of hostilities also in the last, from Pahalgam to Operation Sindoor, between the opposition and government, once again when the accusations, the personal allegations, slander has broken out, तो कोई लगता है कि हम बिल्कुल ही all time low पे हो गए हैं? There's no, especially in the last few years, one is seeing मैं there is प्रिया no जी, coming, going back, no dialogue. मैं आपसे 100% सहमत हूं। हमारे देश का लोकतांत्रिक संवाद, राजनीतिक दलों के बीच का संवाद अब इतने निचले स्तर पर जा चुका है कि मेरी कल्पना से परे है कि इससे नीचे क्या होगा। आप अपने विपक्ष अपने पक्ष को शत्रु की जुबान से बात करता है। बल्कि मैं सच ये कहूं तो कई दफा तो शत्रुओं के बीच में भी इस तरह की जुबान का इस्तेमाल नहीं होता। ये आज आपको ताली बजाने वाले लोग मिल जाएंगे। मैंने दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि हर दौर में जो चीज, जो विचार लोकप्रिय होता है, वो लोकोन्मुख भी हो जरूरी नहीं है। अ पॉपुलर आइडिया may not be actually oriented towards the larger good of humanity। तो ये फर्क अगर हम भूल जाएं और एक दूसरे को अविश्वास, शंका, गद्दार की जुबान से बात करें। जैसे मैं एक छोटे से उदाहरण दूं
कि जो कुछ भी ट्विटर पे चल रहा है, हाँ। मैं उसमें सिर्फ एक पक्ष रखना चाहूंगा। संसद के सत्र का इंतजार कीजिए। संसद सबसे बड़ी पंचायत है, वहां सारे सवाल होंगे, वहां सारे जवाब होंगे। मैं एक उदाहरण और दूं। जब गुडविल मिशन को लेकर के भी अननेसेसरी कंट्रोवर्सी हुई, किसका नाम पहले से चल रहा, उसका नाम ऐसे आया, पार्टियों से नहीं पूछा, पार्टी से पूछा। मैंने पिछले कुछ इंटरव्यूज में कहा है और लिखा भी है कि प्रधानमंत्री जी तमाम दीवार तोड़ दें। वो कॉल करते फोन उठा करके राहुल जी को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को, जैसे हमारे यहाँ लालू जी को, तेजस्वी जी को, एक साथ बैठते। मैं यकीन के साथ कहता हूं, जितना मैं अपने देश के लोकतंत्र को और संवाद की परिपाटी को जानता हूं, कुछ कंट्रोवर्सी नहीं होती। आधे घंटे के अंदर नाम तय हो जाते, लीडरशिप तय हो जाती, मुद्दे तय हो जाते। हम असल में कुछ अच्छा भी करने को चल रहे हैं बीते कुछ वर्षों में। वी मेस इट अप, वी या मेस इट अप, वी सेंड द गुडविल मिशन, बट द जेनेसिस ऑफ गुडविल मिशन इज मेस्ड अप। अल्टीमेटली क्या होता है कि दुनिया में लोग दूसरे देशों का अखबार, वहां के वीडियो भी देखते हैं। इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो एक तरफ मिशन जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ ना नेता एक दूसरे को गद्दार बोल रहे हैं, धोखेबाज बोल रहे हैं, पाक परस्त बोल रहे हैं। तो ये न सिर्फ दुविधा, बल्कि एक ऐसी सोच को जन्म देता है जिसमें लगता है कि एक लोकतंत्र के रूप में, एक महासागरीय चरित्र वाले देश के रूप में, एक सभ्यता जनित देश के रूप में हमने अपने मुकाम कैसे बदल लिए, अपनी मंजिलें कैसे बदल ली। अगर, बिकॉज गुडविल ऑल्सो बिगिंस एट होम, और इतनी गुडविल जैसे आप कह रहे हैं, ट्रस्ट इतना लो है, अगर नरेंद्र मोदी जी फोन करते राहुल गांधी या लालू जी और किसी को, तो यहाँ दूसरी तरफ से ये नैरेटिव आता कि भाई वो बिल्कुल बेबस हो गए, अब हमारी मदद चाहिए। ये लोग कह भी रहे हैं कि नहीं अकेले नहीं, नहीं जा सकते, प्रिया प्रिया जी, विश्व गुरु प्रिया थे जी, कहाँ गए, अब प्रिया हमारी जी, जरूरत है। मैं असहमत हूं। जो लोग कह रहे हैं, असल में हम लोगों के साथ दिक्कत इन दिनों क्या हो गई है ना, हमने ट्विटर को संसद का पर्याय बना दिया है। मेरा ये अगला सवाल था, तो बहुत सही बोला आपने। हाँ, ट्विटर को संसद का पर्याय बना दिया है। ट्विटर पर अपनी बात रख दी, ट्विटर पर सवाल पूछ दिए, और ट्विटर पर श्रद्धांजलि दे दी, ट्विटर पे दर्द व्यक्त कर दिया, और अपनी सारी जिम्मेवारियों से हम मुक्त हो गए। ये कतई नहीं होता। जब मान लीजिए 71 में इंदिरा जी जब विपक्ष को रीच आउट की, तो वो कमजोर नहीं थी। रीच आउट करना कमजोरी नहीं होता है, विशाल हृदय का परिचायक होता है। ये देश विशाल हृदय वाला है। मतलब अगर आप आज से नहीं, हजारों साल का इतिहास देखें इस देश का, ये संकीर्ण दायरों में कभी सोचा ही नहीं। अरे इस देश ने कबीर, रैदास दिए, गुरु नानक दिए, और ऐसी, और ये जो दिए ना, ये मिट्टी की देन थी। इस मिट्टी की क्षमता बहुत है। इस मिट्टी को जो लोग महासागर को तालाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सब तालाब ट्विटर पे ही बना लेते हैं, या फेसबुक पोस्ट लिख दिया, या इंस्टा पे डाल दिया। मैं समझता हूं आप उन सारी चीजों का इस्तेमाल करें, लेकिन विषय की गंभीरता को, विषय के औचित्य को वो सम्मान मिले जिसका वो हकदार है। तो एक्चुअली सही कह रहे हैं, जो मैं कहना चाहती थी आपने बहुत अच्छी तरह से आर्टिकुलेट किया है, मस्ट थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज दिस इज अनफॉर्चुनेटली द वे स्टेट एंड पॉलिटिक्स हैज बिकम। अब ये नहीं पूछेंगे किसने, हु कास्ट द फर्स्ट स्टोन, आई थिंक बोथ साइड्स आर इक्वली एट फॉल्ट ओवर हियर, एट द वे द। देखिए, एक एक शब्द में मैं बोलूं, मेरा, मैंने इस पर लिखा भी बहुत है, मेरा सिर्फ ये मानना है कि हम प्रतिस्पर्धी हैं, दुश्मन नहीं है। वी हैव ऑल्टरनेटिव विजन ऑन सर्टेन इश्यूज। वी आर नॉट टू एनिमी कैंप्स। ये जो एनिमी कैंप्स वाली चीजें हो गई हैं, और पोलराइजेशन भी हो गया है सोशल मीडिया पे, दिस मस्ट गो। इफ इट डजंट गो, इंडिया गोज डाउन। और कौन हम में से अफोर्ड करेगा कि अगर हिंदुस्तान, भारतवर्ष नीचे चला जाता जाए। तो हल क्या है टू दिस ट्रस्ट डेफिसिट, एंड हु हैज टू फर्स्ट पिक अप दैट फोन कॉल, मेक दैट फोन कॉल? मेरा सिर्फ सिर्फ ये मानना है कि फर्स्ट की, अब गांधी तो कोई आएंगे नहीं, नेहरू तो कोई आएंगे नहीं, बाबा साहब तो हैं नहीं, हम्म। तो हम में से किसी को, देखिए, पहला जिसने हाथ उठा करके ये कह दिया
वी आर ऑन द सेम पेज, वो इतिहास पुरुष बन जाएंगे, वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों। इतिहास पुरुष का इंतजार करें या इतिहास के पन्नों से ही गुजारिश करें कि ये सद्बुद्धि सब में आ जाए कि लोग कहें कि हमारे राजनीतिक मुद्दे रोटी रोजगार आवास के हों, बेहतर स्वास्थ्य के हों, और जो बात मैंने पहले कही थी, देश में राजनीति हो, देश पर राजनीति नहीं हो, क्योंकि देश सिर्फ कागज पर बना एक नक्शा नहीं है। सर्वेश्वर के शब्दों में ये रिश्तों से भी बनता है। अगर रिश्ते में रिसाव है तो फिर किस बात की। एक तरफ मध्य प्रदेश के मंत्री जी हाँ। उस तरह का बयान दे देते हैं, दूसरी तरफ एक एकेडमिशियन कहता है कि जो अभी शोकेसिंग हम कर रहे हैं, जो बहुत खूबसूरत चीज है, वो दैनंदिन में होना चाहिए। इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, राइट। हिज सन बिहाइंड द बार्स। ये दोहरा चरित्र भी हमें खत्म करना होगा, और ये सबको करना होगा। हिंदुस्तान की मिट्टी बंटवारा, जहन का बंटवारा, गांव का बंटवारा, गली का बंटवारा स्वीकार नहीं करेगी। इसमें वो आपकी बात है कि कौन शुरुआत करे। मैं समझता हूं कि जो भी लोग आपका वीडियो देखें, वो उसके बाद अपने अपने अंतर्मन में भी सोचे कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या और आर वी बिकमिंग रोड ब्लॉक। I'm going to take a break and keep the conversation going because हम इस जमाने में रहते हैं where dialogue which should be a bridge is now becoming a sign of weakness। मतलब ये भी कहेंगे जिसने पहले फोन उठाया कि भाई उसकी out of compulsion फोन उठाया, ये नहीं समझेंगे it is out of the goodwill gesture। That unfortunately is something the times we live in। But I'm एक going to। एक एक चीज प्रिया जी, हाँ। मैंने आपदा पे बहुत काम किया है, मानव निर्मित आपदा और प्राकृतिक आपदा पर भी, विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र के रूप में। आपदा, भूकंप या बहुत बड़ा दंगा, बाढ़ आती है ना, अपना घर दूसरे घर की चिंता लोग छोड़ते हैं, हम्म। घर बचाने की कोशिश करते हैं, घर किसी का भी हो। यहां तो देश का घर है, अपना पराया इसमें देखा नहीं जाएगा। और मैं मानता हूं वो क्षण आएगा, हो सकता है कुछ और हमें गंवाना पड़ जाए, लेकिन वो क्षण आना है इस देश में जब हम एक जैसा सोचेंगे, और कुछ बिंदुओं पर किसने पहले फोन उठाया उसको कमजोरी नहीं, उस इंसान की ताकत समझेंगे, वो क्षण भी आएगा। A bit about now caste politics के बारे में। उससे पहले मैं आपने प्रोफेसर अली के केस के बारे में रेफरेंस तो किया, बट आई जस्ट वांटेड ऑफ योर टेक ऑन द लार्जर मैसेज इट सेंड्स आउट, द काइंड थोड़ा तो आपने बात करी है पर थोड़ा सा और उसके बारे में, द वे द कोर्ट्स हैव हैंडल्ड द मैटर। देखिए प्रिया जी, मैं इस बारे में एक बात सिर्फ कहूंगा हम्म। कि आलोचना स्वस्थ लोकतंत्र का द्योतक है। आलोचना, और आलोचना, हर आलोचना सेडिशन नहीं हुआ करती है। उस व्यक्ति के फेसबुक पोस्ट का मर्म अगर एक था, और वो मर्म था, मैं बता रहा हूं कि पहलगाम से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भारतवासी के नाते, हिंदुस्तानी के नाते, मेरे लिए सबसे गर्व का क्षण वो हुआ करता था जब विक्रम मिश्री साहब, सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह वो आते थे। तो सिर्फ मिलिट्री माइट की बात नहीं होती थी कि देश कि हमारी हमारी सेना ने कितने प्रिसीजन के साथ आतंक की प्रयोगशालाओं को अटैक किया। ये बात होती थी इंडिया एज एन आइडिया की, जिसको नेहरू कहते हैं पैलिम्सेट। इबारत पे इबारत लिखी गई, कोई भी इबारत पुरानी मिटी नहीं, नई इबारत के लिए भी जगह मिल गई। वो मेरे लिए गर्व का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण हुआ करता था। अब किसी, अगर मेरी भी ख्वाहिश हुआ करती थी, काश ये हमेशा ऐसा ही हो, काश हमारे देश की किसी आबादी को, किसी बुद्धिजीवी को सिर्फ उसके विचार के लिए पाकिस्तान जाने को न कह दिया जाए। अब कई मंत्री हैं दिन रात डॉग विसिल पॉलिटिक्स करते हैं। अब कल भी मैं समझता हूं डॉग विस्लिंग का जिक्र आया कोर्ट में भी। डॉग विसिल पॉलिटिक्स करके लोग ऊंचे मुकाम तक पहुंच गए हैं, रसूखदार बन गए हैं। कहीं ना कहीं हमें डॉग विसिल पॉलिटिक्स को बंद करना होगा, जिसमें बहुत हमें अपनी जुबान, अपनी शब्दावली को पूरा का आमूल चूल परिवर्तन करना होगा।
वो संदर्भ मैं समझता हूं कि बरकरार रहे या बहाल बहाल हो पुनः, तो बेहतर होगा। आई होप यू आर राइट ऑन दैट, बट वी विल वॉच दिस स्पेस। आपकी ऑप्टिमिज्म है, देखते हैं क्या होगा। थोड़ा सा अबाउट नाउ, बिहार चुनाव आ रहे हैं, अगला चुनाव बिहार में ही होगा, और काफी लोग ये भी कहते हैं कि ये जो अभी जो पाकिस्तान के साथ जो हुआ था, आई मीन इट्स वेरी क्रास टू से देयर इज अ पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ इट, पर क्या बिहार चुनाव में इसका भी कोई पॉलिटिक्स का असर होगा? प्रिया जी, मैं आपको फिर जिस जिस स्पिरिट से हम लोग बात कर रहे थे, मैं एक नागरिक के रूप में, एक सांसद के रूप में शर्म महसूस करता हूं जब ये चर्चा भी होती है कि 26 जानें गईं और उसके बाद हमारी सेना ने प्रिसीजन के साथ आतंक की प्रयोगशालाओं को नष्ट किया। और उसके बाद, बल्कि जब ऑपरेशन चल रहा था, तो एक पत्रकार महोदया ने मुझसे पूछ दिया, हाउ विल इट इम्पैक्ट बिहार इलेक्शन? टू शेम ऑन ऑल ऑफ अस, व्हाट हैव वी बिकम, वेयर हैव वी रीच्ड, that people have lost their near and dear ones in Pahalgam. We have lost our forces. बिहार में हर दूसरे दिन इस बीच में पार्थिव शरीर आ रहे हैं हमारे जवानों के। तेजस्वी जी हर जगह जा रहे हैं। ये क्या हो गया अपने अपने देश में? मैं शर्मिंदा हूं। मतलब मैं इसका साझेदार नहीं हूं, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं कि अपने देश को, इसके आला मुकाम को हम कहां ले आए, क्या करके रख दिया है। अरे चुनाव बिहार के मुद्दे पे होंगे, खास मतलब मैं दूसरे राज्यों को निम्न नहीं बताना चाहता, अलग नहीं, हम्म। लेकिन बिहार के साथ क्या है ना कि इट हैज सरप्राइज पीपल। यहाँ सबसे बड़ा सवाल पलायन का है, रोजगार का है, सामाजिक सुरक्षा का है, महिला सबलीकरण का है। इन सारी चीजों पर तेजस्वी जी एक ब्लूप्रिंट के साथ काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि सेना का शौर्य, सेना देश की, हमारी सेना, मैंने शुरू में एक में कहा था कि बहुत बड़ा फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सेना में। वी हैव अ प्रोफेशनल politically unaffiliated army, राइट। whereas Pakistan army either has a government or tries to be in the government. That's the distinction. और इस संदर्भ में कोई अगर इसको बिहार चुनाव के लिए कहता है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, गेट वेल सून। अगर मेरे देश में ये मुद्दे चुनाव में लेके जाए जाएंगे और वहां पर सेना के शौर्य या पहलगाम की पीड़ा का राजनीतिकरण होगा, तो वो राजनीति, मैं समझता हूं, उसको हम दूर से भी देखना, छूना पसंद नहीं करेंगे। नो, आई थैंक यू फॉर दीज वर्ड्स। आई थिंक दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स के जंग के साथ और लाइव्स ऑफ आवर सोल्जर्स एंड सिटीजन्स के साथ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, एंड आई डू होप द पॉलिटिकल क्लास विल लिसन टू यू। फिर एक और, जैसे आपने कहा बिहार के चुनाव बिहार के मुद्दे पे होंगे, कास्ट सेंसस, जैसे कि जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया, ये लोग कहते हैं ये बिहार चुनाव को लेकर लिया गया है, क्योंकि उसकी टाइमिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हर डिसीजन की टाइमिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? प्रिया जी, मैं एक चीज आपको कहूंगा। मैंने सदन के अंदर हम्म। 22 में इंदौर लिटरेरी फेस्टिवल, 22 में और 23 में सदन के अंदर तीन अवसरों पे कहा था कि ये इसी सरकार को कास्ट सेंसस करना होगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप गूगल करिए, पता चल जाएगा। मैंने क्यों कहा, मैं भविष्यवक्ता नहीं। मैंने क्यों कहा ये, मैं ऐसा कहने को इसलिए प्रेरित हुआ कि कोई भी वैचारिकी जब परवान चढ़ जाती है, उसको कोई रोक के रख नहीं सकता। अतः प्रधानमंत्री जी जो कास्ट सेंसस के नाम पर पहले कहते थे कि जातिवाद का जहर फैलेगा, अमित शाह जी के बयान हैं, कई मुख्यमंत्री तो इतना अतिरेक में चले गए कि जैसे ही किसी ने कास्ट सेंसस में कहा, तो उसके ऊपर एकदम लोटाडोरी लेके चल पड़े कि नहीं साहब क्या कर रहे हो, समाज में जहर घोल दोगे। ये भूल गए कि कई दफा एक टर्निंग पॉइंट आता है। और मैंने एक अंग्रेजी की कहावत है, एन आइडिया विच हैज अराइव्ड हम्म। cannot be set aside by anyone, how so powerful he or she is. Caste census as an idea has arrived. इसमें 40 वर्षों से लोग लगे थे प्रिया जी। मंडल कमीशन के बाद से ही लोगों को लग रहा था कि हम हर चीज को गिनते हैं। तो जिनके लिए नीतियां बनानी है, जिनके सरोकार और सबलीकरण के लिए
जिनके प्रतिनिधित्व के लिए उनका वैज्ञानिक समकालीन वैज्ञानिक आंकड़ा क्यों नहीं है? यूपीए की सरकार में लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, तीनों लोगों ने रखा। बल्कि गोपीनाथ मुंडे जी का भी सॉफ्ट कॉर्नर था इस मुद्दे के साथ, खुल के नहीं बोल सकते थे क्योंकि बीजेपी के कैरेक्टर में ये पूरी तरह फिट नहीं बैठता है। फिर तब चल करके यहां बिहार में जब 22 में हमारी सरकार बनी, जब नीतीश जी ने कहा कि तेजस्वी जी से कि आप हमको बचाओ, हमारी पार्टी को, क्योंकि बीजेपी ब्रेक करना चाहती है, तो दो ही शर्त थी, एक जॉब्स पर हमको फ्री हैंड दीजिए और दूसरा कास्ट सर्वे। सेंसस नहीं हो पाएगा क्योंकि वो डोमेन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। हुआ, इसलिए मैं वो टाइमलाइन आपको बता रहा हूं। फिर राहुल जी ने इसके लिए आवाज उठानी शुरू की, तो वो पूरी की पूरी धारा बलवती हो उठी। और जब धारा बलवती, इस मामले में मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी यू टर्न लेते हैं जब देख लेते हैं कि धारा बलवती हो गई है, तो मैं इसको प्रधानमंत्री जी का एक यू टर्न मानता हूं। लेकिन ये वेलकम यू टर्न है, बट थिंग्स डोंट स्टॉप हियर। अनाउंसमेंट टू हैव अ कास्ट सेंसस इज जस्ट द फर्स्ट माइलस्टोन। Now there are issues. What kind of anthropological, sociological input you provide in the data collection process? How the manpower is trained? Number two, how categorization is ensured that there are subcastes. तो उन सबकास्ट का मर्जर कैसे होता है? You would require anthropological input. Then, when the data is available, how do you take it to private sector? Representation in private sector, increase in quantum of reservation. That's a very major demand, as powerful as the idea of caste census. और फिर की समानुपातिक दृष्टिकोण से विधानसभाओं में और लोकसभा में प्रतिनिधित्व। तो ये अनाउंसमेंट ऑफ द फुल बास्केट शैल कम इनटू प्ले। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा है, वी शैल रिमेन ऑन अलर्ट मोड सो दैट द गवर्नमेंट डज इट इन अ प्रोफेशनल मैनर। एंड किसी एक सेंट्रल मिनिस्टर ने, हमारे बिहार के ही हैं, उन्होंने कहा कि इसको सार्वजनिक ना किया जाए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, हंसी भी आई। आंकड़े अगर सार्वजनिक ना किए गए तो क्या बैकग्राउंड में डेकोर पीस की तरह रखने के लिए है ड्राइंग रूम में? I mean, there should be a basic understanding. Why do we need a scientific data? That scientific data help India evolve for the better. वो एक बहुरंगा चरित्र बनेगा देश का, जो हम हैं उसको और एक आयाम मिलेगा, बृहद इंद्रधनुषी आयाम। We're out of time, but I just have one last question. Are you happy with the way Congress has taken up the cause of the caste census? Because a lot of people are saying कि कांग्रेस की खुद की इश्यूज नहीं है, वो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव वाली इश्यूज लेके कांग्रेस इशू बना रहे हैं। देखिए, ये मीडिया का बड़ा पेट सवाल है। मेरे कई सारे दोस्तों ने ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड पूछा है। ये किसने कब उठाया, मैंने पूरी टाइमलाइन आपको बता दी, तो आपके व्यूअर्स जानेंगे। लेकिन बहुजन धारा मुट्ठी है, मुट्ठी में कौन सी उंगली कितना कंट्रीब्यूट कर रही है ना, इसका कोई तराजू नहीं बना है प्रिया जी। शुक्रिया। Thank you so much for this conversation and thank you for joining us. Thank you, Ji Manoj. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.